Yeah. Okay. I think we all have seen the readability check performer. Okay. So do the readability check. Any one of you do the readability check. This time you can take any one of your sign language, any of the call sign you can choose for you. And for me, I'll be Chennai Tower. Go ahead. Frequency, anything that can be hypothetical, you can choose from your side. My station will be Chennai Tower. Go ahead with the readability check. Chennai Tower, Chennai Tower, Victor Tango Lima Kilo Kilo 1 1 2 3 decimal 5. How do you read? Victor Tango Lima Kilo Kilo Chennai Tower. Radio 5. How do you read? Radio 5, Strength 5, Victor Tango Lima Kilo Kilo. Okay, good one. Other station, do the readability check, please. Go ahead, go ahead. Chennai Tower, Victor Tango, India Zulu November, 12345. How do you read me? Station calling Chennai Tower. Say again your call sign. Victor Tango, India Zulu November, 12345. Okay, How do you read me? okay, good. Victor Tango, India, Zulu, November, Chennai Tower, 1 2 3 4 5, radio 5. Now, अभी थोड़ा सा करेक्शन करना है. वो जो लास्ट में how do you read me बोला ना आपने, that not to be there in the examination point of view. ठीक है, only how do you read, also how it came. Okay, so we need to avoid how do you read me. अच्छा गणपति हो रहा है क्या पीछे? Okay, I can understand. ठीक है, I can understand the background noise. ठीक है, this one is good. Now, okay. अभी हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा डाउट आए. There may be a chances of doubt कि why you are every time asking कि not to say me, why every time you are asking कि don't say this is. ठीक है, also कि from these things came. When we look at the ICAO document 9432, that is manual of radio telephony, here we have the phrases. ठीक है, the aeronautical phrases. In that phrases, you can see for the readability check, there is a standard phrase of how do you read. You can see it here, right? Yeah. And this to be followed strictly. So don't use me, don't use this is. ठीक है, casual talks में ये सब चलता है, but for examination point of view, at least we need to take care of this. Now, as per our lecture plan, we had completed the introduction, radio stations, rule of 4Ws. We have also seen the ATC offices hierarchy and readability check tak humne padha. After that, we had 2 more classes. There we had understood about aeronautical phonetics and the reading techniques of time, date, and other parameters. Yesterday, we have seen about aerodrome and its part. Okay. I think these 2 lectures being missed by some of you. So you can cover these 2 lecture by seeing video. Otherwise also, I'll make it cover it up for you by tomorrow. कल हम लोग फिर से टिल लेक्चर 4 जितना है उसको समराइज करके पढ़ लेंगे ताकि आपका ये सेशन मिस नहीं हो. Today I am going to open a fresh topic, a new topic, जिसका पिछले क्लासेस से लिंक नहीं होगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, today I'll open one fresh topic and then we'll back to the earlier completed topic also, so that कि किसी को भी ऐसा फील नहीं हो कि मेरा कुछ पढ़ना छूट गया. ठीक है, we'll cover it, don't worry. So as per the plan and till now whatever we have understood, अभी तक हमने देखा कि बेसिक रीडेबिलिटी चेक कैसे किया. Now we will see the very important topic, that is flight planning. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट प्लान कैसे करोगे. Why that is important? Because
जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन अपीयर करते हो या फिर डे टू डे अपना जो भी एक्टिविटी होती है जहां पे रेडियो कम्युनिकेशन का यूज होगा, दैट इज टोटली अ फ्लाइट प्लान बेस्ड सिनेरियो। आप एयरपोर्ट पे जाओगे ही नहीं अगर वहां पे किसी फ्लाइट का प्लान नहीं होता है, ठीक है। नोबडी विल गो देयर, neither pilot nor passenger nor engineers, nobody will go there if there is no plan of flight। प्लान ही नहीं है, फ्लाइट ही नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज अ रूल। क्या कहता है एयर नेविगेशन का रूल कि इफ यू वांट टू ऑपरेट योर एयरक्राफ्ट, ठीक है, इफ यू वांट टू ऑपरेट योर एयरक्राफ्ट एंड इफ यू आर अ ICAO कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, इसको थोड़ा सा लिखता हूं। ICAO कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट्स मींस वो सारे देश जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, स्टेट्स मींस है कंट्रीज, वो सारे कंट्रीज जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यस we will be engaged in civil aviation operations and we will abide the rules and regulations made by ICAO। तो सारे कंट्रीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द ICAO, yes we will follow the international civil aviation rules and guidelines। तो जो भी कंट्री अपने देश में सिविल एविएशन ऑपरेट करना चाहता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ commercial activity, they should have a flight plan very clear। Now about the flight plan is a document which specifies the informations to air traffic services or air traffic controllers, you can roughly say। We are specifying our information to air traffic services units related to our intention of flight, ठीक है, कि हमको फ्लाइट करनी है। क्यों हो सकता है वी कैन हैव अ चार्टर और वी कैन हैव अ नॉन शेड्यूल ऑपरेशन, वी कैन हैव अ जॉय राइड काइंड ऑफ फ्लाइंग, और वी कैन हैव एनी कमिटमेंट टू द फ्लाइट। तो हम सबसे पहले अपना फ्लाइट का इंटेंशन प्रपोज करते हैं टू द एयर ट्रैफिक सर्विसेज, जिसमें क्या क्या रहता है, उस फ्लाइट प्लान के क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है, और किस टेक्निक के द्वारा इसको सबमिट किया जाएगा, सबमिशन का मेथड क्या है, उसके कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे, उसको कंप्लीट करके रिपोर्ट कैसे करना है। अगर फ्लाइट प्लान में किसी भी टाइप का चेंज आ गया एज पर आवर इनिशियल प्लान, सपोज हमने प्लान किया था पहले कि दिल्ली से मुंबई जाएंगे, नाउ देयर इज अ चेंज कि वी हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू पुणे ओनली, एंड क्लोजिंग ऑफ द प्लान कंप्लीट कैसे करना है, मेंटेनिंग ईच एंड एवरी टर्म्स, the submission, the contents, completion, changes methods, closing of a flight plan, all these things are given in ICAO Annexure 2। ये गाइडलाइन हमको कौन देता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। आप अपने फ्लाइट प्लान में क्या क्या लिखोगे। नाउ द फ्लाइट प्लान फाइलिंग मेथड, ठीक है, फ्लाइट प्लान फाइलिंग मेथड की फ्लाइट प्लान फाइल कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, that may be a written document, that may be a altogether electronic format, or the mode established by authority of a state। आपके देश का सिविल एविएशन अथॉरिटी जो भी सबमिशन का टेक्निक या मेथड एस्टेब्लिश करता है, आपको उसको फॉलो करने हैं। लाइक 4 years ago इन इंडिया आपको फ्लाइट प्लान हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था अपना फ्लाइट प्लान। एंड देन इट केम्स द टाइम ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज हुआ कि आप फ्लाइट प्लान हार्ड कॉपी में फिल करो, स्कैन करो और सेंड कर दो, ठीक है, ईमेल कर दो टू द नियर बाय ATC और टू द नियर बाय फ्लाइट कंट्रोलर रीजन। उसके बाद कई सारे वेबसाइट्स आने शुरू हो गए जहां पे ऑनलाइन मेथड है कि आप अपना फ्लाइट प्लान सबमिट कर दो। स्काई वेक्टर, one of those you can say website or software, and there are many, कि आप उसको यूज करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपना फ्लाइट प्लान का इंटेंशन फिल कर दोगे, दैट ईमेल विल बी डिलीवर्ड टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑटोमेटिकली। तो आपके देश में क्या मेथड चल रहा है ये डिसाइड करेगा आपके देश का अथॉरिटी ऑफ स्टेट।
ठीक है, वी वेर अर्लियर डूइंग ऑन हार्ड कॉपीज, नो ऑनलाइंस। दैट टाइम यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, ऑल यूनाइटेड स्टेट्स, सबके सब डिजिटल हो चुके थे. So they were using an electronic format of flight planning, but in India we were following the hard copies. Now we had also become electronic and we had also come to software based application theory. तो किस देश में किस टाइप से फ्लाइट प्लान सबमिट करना है ये वहां के अथॉरिटी ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश कर देंगे. इफ यू गो समवेयर इन अफ्रीकन कंट्रीज देयर आर very less development in kind of electronics and digital communication system. तो हो सकता है वहां पे अभी भी फ्लाइट प्लान पेपर बेस्ड सिस्टम हो. आप पेपर पे लिख के दोगे, एटीसी उसको एक्नॉलेज करेगा एंड दे विल गिव यू वन रिसिप्ट. सो क्या मोड है, क्या सबमिशन का मेथड है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अथॉरिटी ऑफ स्टेट. लेकिन उसके अंदर का कंटेंट क्या क्या है ये डिसाइड करेगा इकाओ. नाउ we'll have a look on standard flight plan. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्लाइट प्लान सेट बाय ICAO. इसके क्या क्या कंटेंट रहते हैं हम लोग उस पर एक बार नजर मारेंगे. सबसे पहले फीलिंग टाइम, किस टाइम आप फ्लाइट प्लान सबमिट कर रहे हो. ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट है. अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या फिर किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड फ्लाइट प्लान फिल करते हो तो भी उस टाइम पे भी उसके बेसिक मेथड्स, ठीक है, या फिर उसके बेसिक कंटेंट्स सेम रहेंगे. ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर में कुछ अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपसे इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल फॉर्मेट में ले, लेकिन जब वो फाइनलाइज्ड होगा, जब वो फॉर्म प्रिंट के फॉर्मेट में रेडी होगा, ओवरऑल वो इसी टाइप का दिखेगा, इसको ऑल्टर नहीं किया जाएगा. डन. तो सबसे पहले फिलिंग टाइम, किस टाइम आपने फॉर्म फिल किया. दिस इज बीइंग लॉग्ड ऑटोमेटिकली नाउअडेज. originator, name of the operator. Then aircraft identification, that is your call sign. This aircraft identification may be your registration number or the ITA code of your airline or your organization plus the flight number. We'll come to this very soon. Flight rules. Which flight rules you are going to choose, IFR, VFR or Yankee or Zulu. Let me ask, Zainab, is this a flight rule Yankee or Zulu clear to you, or shall I need to redefine? Because I'm not recalling where you were there that day or not. No, I was not there. Okay, got it. I'll come to that, don't worry. So flight rule, which flight rule you are going to choose, IFR or VFR or Yankee or Zulu? I'll come over that. And then type of flight, scheduled, non-scheduled. ठीक है. Sectors, this is number sectors, how many sectors you are having, 2, 3, 1, like that. Type of aircraft means your aircraft model. Then wake turbulence category, very important. Wake turbulence categories are there कि whether your aircraft is having low wake turbulence or light, moderate or heavy or high. ठीक है, हम लोग आएंगे उस पे. Wake turbulence category is a information कि जब आपका एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन होता है, द मोमेंट योर एयरक्राफ्ट इंजन्स आर टर्न्ड ऑन, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज गोइंग टू मेक टर्बुलेंट behind the aircraft, that is known as wake turbulence category. We'll come over that. Equipments, whether your aircraft is having all standard equipments or any special equipments like category 3B, category 3A, PBN, MNPS, RVSM, such kind of equipment information will be written here. Departure aerodrome, कौन से एयरपोर्ट से डिपार्ट करोगे उसका 4 digit location designator. Departure aerodrome का location designator. Which is your departure time? What is your departure time? ठीक है. And then cruising speed. Level, which altitude you want to cruise on a straight and level flight. Route, which route you are going to choose. About your destination aerodrome. About total estimated elapsed time, E, that is total EET, estimated elapsed time, कि कितना टाइम आप एयर में या फिर आपके फ्लाइट प्लान ऑपरेशन में टोटल कितना टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है, व्हाट इज योर एस्टिमेटेड elapsed टाइम, कितना टाइम आपका कंज्यूम होगा.
alternate aerodrome. If you are not able to land at your destination aerodrome, then what is going to be your first alternate aerodrome? Or if you are unable to land here also, what is going to be your second alternate? And then many supplementary informations. What is your endurance? कि आपके एयरक्राफ्ट में अगर फ्यूल जो भी ऑपरेशनल फ्यूल है पेलोड के अकॉर्डिंग अगर उसको फिल कर दिया जाएगा तो कितना मोमेंट आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हो. दिस एंड्योरेंस शैल बी ऑलवेज हायर देन टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स्ड टाइम. आपकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए आपके वर्क डन से. ठीक है. देन पर्सन ऑन बोर्ड. पर्सन ऑन बोर्ड इज टोटली नाउअडेज नोन एज पैसेंजर्स ऑन बोर्ड. ठीक है, बट दे हैड मेड इट पर्सन so that if any charter or private category aircraft is there, they can be fit into. Then emergency radio, ELT, yes. VHF communication, yes. UHF communication systems, yes. Survival equipment, आपके पास आपके एयरक्राफ्ट में लाइफ राफ्ट है या फिर लाइफ जैकेट्स हैं. आप जंगल में सरवाइव कर सकते हो या मैरीटाइम सरवाइव कर सकते हो, डेजर्ट सरवाइव कर सकते हो, पोलर रीजन में सरवाइव कर सकते हो, या फिर और भी ऑप्शंस क्या क्या हैं आप इसमें फिल आउट करोगे. देन जो आपके लाइफ जैकेट्स हैं उसका कलर कौन सा है, उसके फ्लोरेसेंट हैं वो या नॉर्मल है. अगर आपके लाइफ राफ्ट या किसी भी सर्वाइवल किट में कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है तो उसका यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके लाइफ राफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, कौन से कलर का है, आपके एयरक्राफ्ट का कलर कौन सा है. If there is an accident, they can identify with the aircraft color and markings, and then this will be signed by pilot in command if that is a private category aircraft or filled by any flight dispatcher accepted by pilot in command. That's all. Okay. The flight plan and everything can be filled by the operations team nowadays. ठीक है. पायलट हर किसी को फ्लाइट प्लानिंग सबमिशन फिलिंग ये सब नहीं करता है. दे कैन सिंपली एक्सेप्ट इट एंड द फाइलिंग टेक्निक और फाइलिंग मेथड्स शैल बी टॉट टू द फ्लाइट डिस्पैचर टीम. तो अगर आपके ऑपरेशंस टीम में कोई फ्लाइट डिस्पैचर है जो कि फ्लाइट प्लान सबमिट करता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज की, ICAO Annexes 2 की. एंड देन ही कैन अप्लाई फॉर अ फ्लाइट प्लान other than pilot. Now, अगर आपको फ्लाइट प्लान के बारे में और ज्यादा पढ़ना है, suppose you want to know more about the flight plan, how it is filled and how it is being used, then you can have in the drive link miscellaneous topics. Okay. When you open the drive link, you will have 4 folders. Is this visible on the screen now also? You will have 4 folders. The videos lectures will be recorded of this session, lecture wise 1-to-1, and then the class notes or the study materials. Okay, this will be available in this folder. Previous year questions given here only. Okay, and there is a folder known as miscellaneous topics diagrams. In this, you will have a folder regarding flight planning. I'll come to this. This is the quick guide about flight plan. फ्लाइट प्लान फिल करने में क्या क्या एब्रिविएशंस यूज होंगे, किसका क्या मीनिंग होता है, वो हम लोग इस ब्रोचर के थ्रू समझ सकते हैं, देख सकते हैं. अगर आपको फ्लाइट प्लान के फिल करने में इंटरेस्ट है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा टू फिल द फ्लाइट प्लान. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन already filled flight plan for reference. Okay, this is the actual flight plan that one time used here in our organization so that I can make you understand कि how it is being filled. अभी टॉप का सेक्शन छोड़ के रखना है, यहाँ पे जो लिखा है ना एड्रेसिंग, just ignore that, that is not useful for now. जब इसकी जरूरत पड़ेगी I'll tell you about that. You can see the number, total 1 sector is there. ठीक है, तो 1. Type of aircraft BE20, ठीक है, that is aircraft model. Aircraft identification Victor Tango Sierra Mike Sierra, that is registration number. Flight rules IFR. Type of flight N, that is non-schedule. Wake turbulence category light.
ठीक है। इक्विपमेंट, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आया कि यहाँ पे इक्विपमेंट में क्या क्या लिख दिया, SBGFRWY/E, इक्विपमेंट्स के सेक्शन पे गौर करो, इतना सारा कोड वर्ड्स लिख दिया। यू माइट हैव लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या 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 सब लिख दिया। आई विल कम टू दैट वन बाय वन, बट अभी के लिए ऐसा समझो, इक्विपमेंट्स आपके एयरक्राफ्ट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है या कोई स्पेशल इक्विपमेंट है तो आप उसके बारे में बताओगे। देन डिपार्चर एरोड्रोम, कहां से डिपार्ट करना है, VOMM चेन्नई। डिपार्चर टाइम 0645, दिस टाइम इज इन UTC, नॉट इन IST। ठीक है। फ्लाइट प्लान, FRB, all those things is being filled in UTC. Cruising speed 297 knots. Flight level 200, that is 20,000 feet. Which route he is taking? Chennai, MMV, that is Chennai. Chennai से whiskey 117. Then BIA, Bangalore International. Then DCT, direct to BBG, HL Airport, Bangalore. ठीक है, so this is their route information. Destination aerodrome, VOBG, HL Airport, Bangalore. Total estimated elapsed time 40 minutes का फ्लाइट है। Alternate aerodrome, अगर HL पे लैंड नहीं कर पाया तो कहां करेगा, बैंगलोर इंटरनेशनल, VOBL. Then other informations, PBN, B2B, 3B4, C2C, 3D2, ये सब हम आएंगे इमीडिएट, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड्योरेंस, आपका एयरक्राफ्ट टोटल कितना फ्लाई कर सकता है, 3 hours 24 minutes अगर फ्यूल भर दिया जाए तो। पैसेंजर ऑन बोर्ड 2, इमरजेंसी रेडियो इक्विपमेंट्स UHF, VHF, ELT अवेलेबल। लाइफ जैकेट है, यस। आपके एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी लाइट है, यस। जंगल में सरवाइव कर सकते हो, नो। मेरीटाइम सर्वाइवल, यस, लाइफ राफ्ट होगा। डेजर्ट में सर्वाइवल, नो। पोलर बियर में सर्वाइवल, नो। देन सर्वाइवल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, कि नॉर्मल सिटी में कहीं कूद गए तो सर्वाइव कर लेंगे। फिर जो आपके कैपेसिटी है सर्वाइवल इक्विपमेंट के कितनी है, 4। कौन से कलर का लाइफ जैकेट है, येलो। आपके एयरक्राफ्ट का कलर क्या है, व्हाइट, ऑरेंज एंड पर्पल, ठीक है। एंड देन इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय पायलट इन कमांड, व्हाट हुएवर इज देयर, ठीक है। एंड देन यू कैन सी द पेज नंबर इज देयर, page 15th of 19. It means this is an electronic flight plan filling. किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको फिल किया गया, बट जो फॉर्मेट निकल के आया, यू कैन सी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में कैसे, इकाओ मॉडल ATC फ्लाइट प्लान जो भी दिया गया है उसी को फॉलो करना है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फील्ड फ्लाइट प्लानिंग। उसके बाद जब आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट प्लान फिल करते हो, सो दैट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन, आपको बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि किस किस ATC को कॉल करते हुए जाना है, कहां से क्या टर्नओवर लेना है, ठीक है, किस रूट पे किस NDV को रिपोर्ट करते हुए जाना है। हर चीज एक पैकेज में बन के आता है। तो टोटल 18-19 का पेज होता है, 18-19 पेज का फ्लाइट प्लान होता है, जिसको एक्नॉलेज करते हैं पायलट्स, ठीक है, एक्नॉलेज करते हैं। भरना अब पायलट का काम नहीं रह गया है, बिकॉज अगर पायलट्स को फ्लाइट प्लान फिलिंग का भी लोड दिया जाए तो उसको हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज नहीं कर पाएंगे। पायलट का काम है फ्लाइट करना, फ्लाइट प्लान हमारा कोई भी भर देगा। नाउ अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पे लिखा हुआ था B2B, B2C इस टाइप से, सो दिस वाज लिटिल कंफ्यूजिंग कि फ्लाइट प्लान में अभी जस्ट इक्विपमेंट वाले सेक्शन में आप सबने देखा कि वहां पे कुछ से कुछ लिखा हुआ था जो कि आपके समझ से थोड़ा थोड़ा आउट हो रहा था। तो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, किसका क्या मतलब है। जस्ट हैव अ लुक। A second, I'll compare so that you can understand how it is being written.
थोड़ा सा क्लैरिटी लेने की जरूरत है, सो दैट इफ समथिंग कम्स सडनली ओवर यू, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और अगर आप बोल रहे होगे कि इतना टाइम लेके सर आप ही समझा रहे हो तो मैं कैसे समझूंगा, यस, बिकॉज वी आर नॉट डेली इन्वॉल्व इन द फ्लाइट प्लान्स, हमारा ये काम ही नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना पड़ता है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी भी ब्लैक आउट नहीं होना है। आपको एटलीस्ट इतना पता चलना चाहिए कि अगर आ गया तो ये है क्या, ठीक है। नाउ देयर इज ए सेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना SBGFRWY, तो यहाँ पे लेटर कोड ढूंढो इधर, किसका क्या मतलब है। लेटर कोड S, उसका मीनिंग लिखा है, ये देखो, यानी आपके एयरक्राफ्ट में मॉड S ट्रांसपोंडर है, राइट। यहाँ पे आपको दिखा S, मतलब आपके एयरक्राफ्ट में मॉड S ट्रांसपोंडर है। देन इट कम्स टू लेटर B, B का क्या मतलब है, आपके एयरक्राफ्ट में LPV कैटेगरी अप्रोच के टाइम पे आप आर्टिफिशियल विजुअल अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देन इट कम्स टू G, G का क्या मतलब है, आपके एयरक्राफ्ट में GNSS मींस आपके एयरक्राफ्ट में नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल है। फिर कौन सा आया F, F का मतलब आपके एयरक्राफ्ट में ADF है। देन R, आपका एयरक्राफ्ट PBN कैपेबल है, ठीक है। देन W, अब इसमें से W ढूंढा जाए, W का क्या मीनिंग है, इधर तो है ये W मतलब RVSM, आपका एयरक्राफ्ट RVSM कैपेबल है। आर यू एबल टू गेटिंग इट, या आई एम बीइंग लिटिल कंफ्यूजिंग, हाउ इज इट गाइस, क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, समझ में आएगा, बट आपको वो ग्रास्प एट दिस टाइम नहीं होगा। व्हाई, ये हमारा एक तो डेली का काम नहीं है, ऊपर से इसको आप बस ऐसा समझो कि अगर कभी किसी ने पूछा कि ये इतने सारे कोड जो लिख के रखे हो इसका क्या मतलब है, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि एक फ्लाइट प्लान फिलिंग गाइड है जिसमें हर एक लेटर कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है। वी नो आवर एयरक्राफ्ट, यस, वी नो द एयरक्राफ्ट सिस्टम्स अवेलेबल टू माय पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, यस, गुड। नाउ अगर हमको कभी ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया तो हम उसको डिकोड कर पाएंगे कि विद दिस लेटर कोड्स हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में कितना सारा इंफॉर्मेशन हमने ATC के साथ शेयर किया, डन। और जिनका ये डेली का काम है उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि किसका क्या मतलब है। Now you can see here B2, B3, B4, everything is written here। देखो B2 मतलब GNSS, B3 मतलब DME, B4 मतलब VOR, B5 मतलब INS एंड IRS। यहाँ पे B5 नहीं लिखा हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में लुक एट हियर, B2 के बाद B3, B4 है, B5 मिसिंग, मींस इस एयरक्राफ्ट में INS नहीं है, INS और IRS इज नॉट देयर। Then it comes to C2, C3, C2 GNSS है, very good, ठीक है, like that only। So you need to understand each and everything by seeing the flight plan filling guide। इसके अलावा आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फ्लाइट प्लान भर के बताओ, और ना ही कभी आपको आई डोंट थिंक सो, करने को तो आदमी बहुत टाइप के जॉब कर सकता है, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्लाइट प्लान फिल करके अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। सो वी विल सर जस्ट कोड नो, क्या, यस यस, गो अहेड। वो जो कोड थे ना वो लर्न करने हैं क्या? नो नो, नेवर Application? नेवर, नहीं, याद नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज कि जब अभी के टाइम पे खास करके इंडिया में पहले क्या होता था कि जब रेगुलर फ्लाइट डिस्पैचर होते थे तो जो भी फ्लाइट प्लान के क्विक गाइड से किसी भी बुक में दिया हो, किसी भी मटेरियल्स में दिया हो, उसको चार्ट से चिपका लेते थे। और एक बार अगर आपने प्रोग्राम अपने एयरक्राफ्ट के लिए सेट कर लिया तो उसमें चेंजेस काफी कम होंगे। आपके एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट्स डेली तो चेंज होगा नहीं, आपके एयरक्राफ्ट के इंफॉर्मेशन डेली तो बदलेंगे नहीं, तो रिपीटेटिव रहता था। तो इन सारी चीजों को हमेशा कॉमन रखा जाता है। अदरवाइज ऑल्सो अभी के टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वहां पे बस आपको एक बार फ्लाइट प्लान प्रोग्राम करना है,
कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चेकलिस्ट टाइप का आता है। आरवीएसएम है टिक कर दो, एडीएफ है टिक कर दो, जीएनएसएस है टिक कर दो, डीएमई वीओआर है टिक कर दो। जैसे ही आप उसको टिक करोगे ऑटोमेटिक वो कोड निकाल के दे देगा। ठीक है, तो आपको ये सारे कोड ना रटने की ना याद करने की जरूरत है, और ना ही ऑलवेज रेडीली समझने की जरूरत है। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा B2 का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर कभी आ गया इन द फ्यूचर और इन एनीथिंग, या फिर पार्ट 2 में आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ लिया ये सब जो कोड लिखे होते हैं वे क्या होते हैं, तो आपको समझ में इतना तो आना चाहिए कि कोड है क्या। तो आप बता सकते हो कि सर दीज आर द कोड्स which gives information about the equipments available in our aircraft. ठीक है, we are not using it daily, so I am not perfect at this point right now, or I am not used to for the flight plan filling, but I can understand if the codes and their decoding techniques will come in my front. I can easily decode कि इस कोड का क्या मतलब होता है, और उस कोड की जो मीनिंग है वो हमारे फ्लाइट को कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो इतनी आपके अंदर बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, एम आई क्लियर फॉर दिस? यस सर। ठीक है, देन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू अबाउट वेक टर्बुलेंस। ठीक है, वेक टर्बुलेंस मैंने क्या बताया कि अगर आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन होता है तो वो कितना अमाउंट ऑफ एयर डिस्टर्ब करेगा, that is known as wake turbulence for your aircraft. Now, this wake turbulence has been divided into 3 categories. First one is low or light. Someone is saying low, someone is saying light. कुछ भी बोलो मीनिंग सेम आना चाहिए। Wake turbulence low और wake turbulence light. Then M, medium. ठीक है, हमने अभी किधर देखा था, कहां पे मांगता है हमसे wake turbulence? We'll have a scene here. Wake turbulence एक बॉक्स बना दिया है, wake turbulence category. So if we are having an aircraft with low wake turbulence हम लोग लिख देंगे L, moderate तो M, heavy तो H। ठीक है, तो टोटल 3 wake turbulence के कैटेगरी क्या सब है, we'll see. First one is low or light, second one is medium or moderate, third one is heavy or high. Apart from heavy or high, there is one more category that is known as super heavy. क्या है एक एक करके समझते हैं। द मेन थिंग इज कि आपका एयरक्राफ्ट कितना अमाउंट ऑफ एयर डिस्टर्ब करता है बिहाइंड यू, दैट इज नोन एज वेक टर्बुलेंस कैटेगरी। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, सपोज यू आर ऑपरेटिंग एन एयरबस एंड आपके एयरक्राफ्ट जहां पे पार्क किए हुए हैं, immediately behind that there is a small aircraft Cessna 172 or 152, any small aircraft is there. Now अगर आपका इंजन ऑन हो जाएगा सडनली with the jet blast or with the amount of air turbulent by this aircraft, इससे ये वाला एयरक्राफ्ट पलटी मार सकता है। ठीक है, ये इस अमाउंट ऑफ एयर को झेल नहीं पाएगा, तो ये जो हमारा छोटा एयरक्राफ्ट है ये एप्रोन से ही टेक ऑफ कर जाएगा। लेकिन एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए रनवे चाहिए, एप्रोन से टेक ऑफ नहीं होने देना है। तो टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स, ठीक है, we are stating about the wake turbulence category of our aircraft to the ATC कि भैया हमारा ये एयरक्राफ्ट है, इसका वेक टर्बुलेंस कैटेगरी इज हाई। अगर हमारे पीछे कोई छोटा एयरक्राफ्ट है तो आप देखो ये आपका लुकआउट है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंजन ऑन किया और कोई छोटा सा एयरक्राफ्ट उड़ान भर लिया, नो, दैट इज टू बी प्रोहिबिटेड। नाउ इसके जो 3 कैटेगरी का कैटेगराइजेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, आपके एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। यहां से थ्योरी ये बनता है कि अगर आपका एयरक्राफ्ट हेवी है या फिर आपके एयरक्राफ्ट का वेट ज्यादा है तो आपको छोटे छोटे इंजन तो लगेंगे नहीं। एयरक्राफ्ट के वेट एंड कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें इंजन उतने पावर का इंस्टॉल किया जाता है कि वो इतने पाउंड का आपको थर्स्ट देगा, कितने फुट पाउंड का वो टॉर्क देगा, जो भी है उसकी इंजन की कैपेसिटी
is depending on the aircraft maximum takeoff weight. तो अगर आपके एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेकऑफ वेट ज्यादा है तो आपको ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए होगा, ठीक है। सो अगर आपके एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 7000 kg से कम है, देन आपके एयरक्राफ्ट का वेट टर्बुलेंस कैटेगरी है लो। अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम है, इट मींस आपके एयरक्राफ्ट का वेट 7000 किलो से लेके 1,36,000 kg के बीच में लाई करता है। इफ योर एयरक्राफ्ट इज हैविंग वेट more than 1,36,000, then that will be heavy. And super heavy के केस में अभी सिर्फ 2-3 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। तो ये अभी तक कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुआ है, बट आइडेंटिफाई किया गया है एज अ सेपरेट। एयरबस 380 दैट कम्स अंडर वेट टर्बुलेंस सुपर हेवी, ठीक है। आपका C-19 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट में आई थिंक एयरबस बेलुगा वेल वाला, these some of the aircrafts has considered as a super heavy, ठीक है। apart from that aircraft category turbulence category low, Cessna 152 172 छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो है, आपका टर्बोप्रोप्स एयरक्राफ्ट, these aircrafts comes under weight turbulence category low। आपका एयरबस 320 319 बोइंग 737 टिल मैक्स, ठीक है, 737-8V, ये सब के सब मीडियम कैटेगरी में आते हैं कि जितने भी इंडिया के डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट है, डोमेस्टिक एयरलाइंस वाले, डोमेस्टिक ऑपरेशन वाले सॉरी, वो सब वेट टर्बुलेंस मीडियम में आते हैं। तो आपके एयरबस 320 319 बोइंग 737-200 राइट नाउ मैक्स वाला भी, -8 को ही मैक्स बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 737-8 और मैक्स, ये सारे के सारे मीडियम। हेवी कौन सा होगा? एयरबस 350 वाइड बॉडी, बोइंग 777 हेवी, ठीक है। तो आपको कुछ एयरक्राफ्ट के एग्जांपल्स आपके एयरक्राफ्ट के वेट पे डिपेंड करता है, आपको ये अपने से अज्यूम करना पड़ेगा। एग्जाम में एयरक्राफ्ट का मॉडल लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट का पार्ट है। तो एग्जाम में अगर लिख दिया एयरबस, तो आप अपने मन से एयरबस का कोई एक मॉडल एज्यूम कर सकते हो, एंड उसका वेट टर्बुलेंस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से, और ये चीज एग्जाम में बोलना पड़ेगा। तो जो 2-4 एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताए, यही सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल बस इतना है कि जो भी 2-4 पॉपुलर एयरक्राफ्ट मॉडल है जो आप डे टू डे एयरफील्ड पे देखते हो, उनका बस मैक्सिमम टेक ऑफ वेट पता होना चाहिए। तो आप इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में उसको अनाउंस कर दोगे कि ये वाला एयरक्राफ्ट हमारा लाइट वेट टर्बुलेंस वाला है, ये वाला एयरक्राफ्ट हमारा मॉडरेट वेट टर्बुलेंस में आता है। Am I clear for this topic now? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, ठीक है। Now we'll talk about some of the general aviation aircraft. अपना Bombardier Global Series. This is important for both of you guys, so I'll tell this. ठीक है, आपका Bombardier Global Series का एयरक्राफ्ट, one of the largest aircraft in the general aviation field. Bombardier के जो भी ग्लोबल सीरीज एयरक्राफ्ट है, ग्लोबल 5000, 6000, 6500, 5500, ये वाला एयरक्राफ्ट, is my screen visible here? I've said something else. Wait. Look at this. Just a second. Clarity first. Screen visible है कि नहीं? Okay. ये सारे जो जेट्स हैं, ठीक है, आपके बम्बार्डियर ग्लोबल सीरीज के एयरक्राफ्ट, चैलेंजर सीरीज के एयरक्राफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, आपका गल्फ स्ट्रीम 550, फाल्कन, ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्ड इन चार्टर सर्विसेज में जिनके एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। तो ये सारे एयरक्राफ्ट मीडियम वेट टर्बुलेंस में आते हैं, ठीक है।
तो कई बार एग्जाम में लिखा रहता है सिर्फ बम्बार्डियर, तो आप वहां से कंसीडर करो, ठीक है। बम्बार्डियर का कोई मॉडल ले लेना, ग्लोबल 5000 6000, और उसके वेग टर्बुलेंस मीडियम में आते हैं। नाउ देयर इज वन कॉशन, जब इंजन रन अप करते हैं, एंड आई थिंक अमोल मस्ट बी नोइंग कि जब भी आप अपने ग्लोबल का इंजन रन अप करते हो, देयर इज ए कॉशन कि आपके एयरक्राफ्ट से 100 फीट और मीटर, फीट है या मीटर है, दैट आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ, बट बोलता है कि 100 मीटर पीछे कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए। Am I right over this? Amol, can you confirm me this? यस Have you learned क्या है वो, 100 मीटर है कि फीट है? What about this? 100 मीटर रहेगा सर। हाँ, 100 मीटर मीन्स आपके एयरक्राफ्ट के 100 मीटर पीछे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए। Behind you, there is a caution in engine run-up provision of global. Why so? Just have a look on my screen. Wake turbulence इतना important होता है। There is an incident. There is an incident, and I have taken a screenshot from the Instagram where I had seen there is a news channel kind of Aviation Daily. वहां पे हमने पढ़ा कि RVSM का जो वर्टिकल सेपरेशन कैटेगरी है 1000 फीट, अगर आपका एयरक्राफ्ट किसी एयरक्राफ्ट से 1000 फीट के सेपरेशन से पास कर रहा है, देन दिस इज कंप्लाइंग द RVSM रिक्वायरमेंट, दिस इज सेफ फ्लाइंग जोन। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इवन आफ्टर बीइंग एट 1000 फीट, Airbus 380 super heavy category का wake turbulence, and one of the aircraft is Bombardier Challenger 604. Challenger 604 itself is a large aircraft in the general aviation field. ठीक है, one of the largest aircraft, Challenger 604, ठीक है, Bombardier का aircraft है, and you can say almost it is having a ranking of second and third in general aviation, charter services में बहुत अच्छा और बहुत लार्ज एयरक्राफ्ट कंसीडर किया जाता है चैलेंजर 604 को। ये चैलेंजर 604 एयरक्राफ्ट यू कैन सी फ्लिप मार दिया इन एयर बिकॉज ऑफ वेग टर्बुलेंस। नाउ यू कैन एज्यूम कि ये कितना डेंजरस है। तो आपको अपने एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस कैटेगरी पता होना चाहिए इस टाइप के किसी भी इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। उसका यूज कहाँ करना है, आई जस्ट गिव सम ऑफ द समरी। जब भी आपके एयरक्राफ्ट को ग्राउंड रन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने एयरक्राफ्ट के वेग टर्बुलेंस के बारे में ATC से बताइए, ठीक है। जब भी आपका एयरक्राफ्ट टैक्सी करेगा, तो आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस बताइए। फिर आप बोलोगे कि सर हम तो डे टू डे में बताते ही नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ना कभी किसी को बताते हुए सुना, ना कभी देखा। ओके, एग्जाम में एटलीस्ट बता लो, फील्ड पे आप क्या करते हो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम में जब भी टैक्सी का रिक्वेस्ट आएगा या कोई भी ऐसा ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट आएगा जहां पे आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन होगा या फिर उस मोमेंट पे आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन कंसीडर किया जाएगा, उस मोमेंट पे आपको अपने एक एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस मेंशन करना है आंसर राइटिंग में। कैसे यूज करेंगे हम लोग इसको फर्दर देखेंगे। जब भी आंसर राइटिंग करेंगे उस टाइम पे अगर मैं यूज करूंगा वेग टर्बुलेंस लो, मीडियम और हाई, तो आपको वहां पे समझ में आना चाहिए कि अच्छा व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ दिस इज बीइंग कैटेगराइज्ड। Am I clear over this topic? वेग टर्बुलेंस समझ में आया? Okay. Yes, sir. Now, very simple, 3 categories only, low, moderate और heavy और light, medium, high, जो बोलना है मीनिंग सेम आना चाहिए कि कम, बीच में एंड ज्यादा, ठीक है, moderate, low and high. How it is being categorized is up to the maximum take off mass. 2-4 पॉपुलर एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। आप अगर एयरलाइंस में काम करते हो, आपके पास एयरबस 320, 319, 321 ये सब एयरक्राफ्ट घूमते हैं, तो आई थिंक उसका भी मैक्सिमम टेक ऑफ मास 136 से कम ही है। तो ये सारे मीडियम, बहुत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट 7000 kg अपना B200 लाइट, उससे ज्यादा हेवी, सुपर हेवी, बोइंग 777 हेवी, एयरबस 380 सुपर हेवी, दैट्स ऑल। तो इसको मेंशन करना है। नाउ विल कम टू दिस फ्लाइट प्लान के। अच्छा, आउट ऑफ दोज 90-20 इंफॉर्मेशंस जो कि फ्लाइट प्लान में दिए हुए रहते हैं,
उसमें से 13 की इंफॉर्मेशन 13 हमको ओनली 13 इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करना है बस। बाकी सारी चीजें फ्लाइट प्लान में रहती है बट उसका फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है। अगर आपने एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स के बारे में एक बार बता दिया तो आपसे कोई पूछेगा नहीं बार बार कि कौन सा इक्विपमेंट फिट है, कौन सा इक्विपमेंट फिट है। नो, सम थिंग्स आर इनफ्रीक्वेंट। एक बार आपके एयरक्राफ्ट के लिए सेट हो गया तो वो जल्दी चेंज नहीं होता है। एंड समथिंग आर वनरेबल, क्या बोलते हैं, वनरेबल, कि वो चेंज होते रहता है, 1 घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, या फिर फ्लाइट ऑपरेट नहीं किए, फ्लाइट प्लान चेंज हो गया। ऐसा भी कई सारा मोमेंट होता है। जनरली शेड्यूल एयरलाइंस में तो कम देखने को मिलता है, बट नॉन शेड्यूल में हमारे पैसेंजर हुए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, 10 बजे आने का टाइम था, नहीं आए तो फ्लाइट प्लान चेंज, ठीक है। हमारा पैसेंजर था कोई बिजनेसमैन, 4 बजे की फ्लाइट थी, नहीं हुआ, फ्लाइट प्लान कैंसिल, फ्लाइट प्लान पोस्टपोन। तो इन सारी चीजों के लिए हमको रेडी रहना है हमेशा। हमारे पैसेंजर्स का हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा वाला हो, पहले उसने फ्लाइट प्लान बोला कि मुंबई से चलेंगे, देन सडनली टोल कि नहीं नहीं मुंबई बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, एक काम करो पुणे से चलेंगे। तो such flight plans can be changed very frequent in general aviation। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है एंड बहुत ज्यादा रेंडम है, दोज आर 13 पैरामीटर्स। ये हमको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। और ये 13 पैरामीटर्स इज गोइंग टू बी क्रूशियल इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द डे टू डे प्रैक्टिस सेशंस। इन सारे 13 पैरामीटर्स के बिना हमारा कॉल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू कंसीडर दीज थिंग्स एंड वी नीड टू रिकॉल इट एवरी टाइम, व्हेनेवर इसकी जरूरत पड़े हमको रिकॉल करना पड़ेगा। हो सकता है अभी के लिए आपको ये टफ लगे कि सर 13 पैरामीटर्स ऐसे कैसे रट के चला सकते हैं। डोंट वरी, 13 पैरामीटर्स आपको कैसे याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग इसका इतना ज्यादा यूज करने वाले हैं कि आप 13 पैरामीटर्स फिंगर टिप्स पे किसी को काउंट करवा दोगे, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट इज एबल टू डू दैट, डोंट वरी, हर एक स्टूडेंट इसको काउंट करवा देता है, स्पेशली इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये 13 पैरामीटर्स याद हो जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ जो सबसे पहला की इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, that is your flight identification, sorry, aircraft identification, this is not known as flight identification, aircraft identification, कि आपके एयरक्राफ्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, that is your call sign। now this call sign can be your aircraft registration number or the IATA code of your airline plus flight number। हम इस टॉपिक पे इमीडिएटली रिटर्न बैक होंगे जैसे ये 13 पैरामीटर खत्म होता है, हमारा अगला टॉपिक यही है। तो अभी के लिए बस इसको होल्ड करके रखो कि आइटा कोड प्लस फ्लाइट नंबर, हाउ दिस इज आवर कॉल साइन। तो 2 कॉल साइन हो सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर द आइटा कोड ऑफ योर एयरलाइन प्लस द फ्लाइट नंबर, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर कॉल साइन, विल कम टू दैट, डोंट वरी। द नेक्स्ट इज योर flight level, as you can see here, level, what is your cruising altitude। जब आप स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करोगे तो आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड क्या रहेगा। नेक्स्ट वेग टर्बुलेंस, अभी मैंने बताया लाइट मीडियम हाई और लो मॉडरेट हैवी, जो बोलना है आपको, तीनों में से कौन से कैटेगरी में आता है। देन डिपार्चर एरोड्रोम क्या है, आपको याद होने चाहिए आपके प्लान के बारे में। फ्लाइट टाइम, किस टाइम पे डिपार्चर है, कौन सा फ्लाइट रूल फॉलो करते हैं, IFR, VFR, याकी और जोलू। ये वाला टॉपिक हम इमीडिएट कवर कराऊंगा आफ्टर दिस सेशन टुडे, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा सेशन खत्म होने के बाद। देन अराइवल एयरपोर्ट, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन का एरोड्रोम कौन सा है, वो भी लोकेशन डेजिग्नेटर के फॉर्म में, नाम नहीं लिखना है सिटी का, 4 लेटर इकाउ डेजिग्नेटर यूज करना है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लाइट, नाउ दिस टाइप ऑफ फ्लाइट इज योर ऑपरेशन टाइप, शेड्यूल्ड है,
नॉन शेड्यूल्ड है, ट्रेनिंग है। इंडिया में तो नॉन शेड्यूल को ही मेडिकल के साथ मर्ज कर दिया है, बट फॉरेन में मेडिकल फ्लाइट का एयर एम्बुलेंस परमानेंट बना के लोग छोड़ देते हैं, वो हमेशा एयर एम्बुलेंस ही रहता है। ठीक है, तो फॉरेन में कहीं कहीं मेडिकल भी यूज करते हैं ऑपरेशन टाइप। व्हाट इज योर अल्टरनेट एरोड्रोम? अगर आप एक एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाए तो दूसरा कहाँ चॉइस रखना चाहते हो? एंड देन रूट, रूट का इंफॉर्मेशन, कौन से रूट को फॉलो करोगे? जब हम लोग चार्ट देखेंगे तो इस पे आएंगे कि रूट इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन अबाउट योर इक्विपमेंट्स, इन जनरल आपको एग्जाम में इक्विपमेंट्स लिखा हुआ दिखेगा एस। एस मतलब ऑल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, प्लस अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट अलग से दिया हुआ है आपके एयरक्राफ्ट में, दैट इज बेसिकली योर ILS कैटेगरीज। अगर आप सर्च एंड रेस्क्यू करने जा रहे हो, देन there is a thing, sometimes it is known as FLIR, forward looking infrared। सर्च एंड रेस्क्यू में कोई इंफ्रारेड कैमरा है आपके एयरक्राफ्ट में, तो ये सब स्पेशल इक्विपमेंट्स अगर आपके एयरक्राफ्ट में है तो उसको मेंशन किया जाता है इक्विपमेंट्स वाले सेक्शन में। बट इन कमर्शियल एविएशन वी आर सिंपली राइटिंग एस, इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड। देन एयरक्राफ्ट टाइप, दिस एयरक्राफ्ट टाइप इज aircraft model, Airbus 320, Boeing 777, Challenger 604, Challenger 850, Bombardier Global 5000, जो भी है like that। So आपके एयरक्राफ्ट का मॉडल कौन सा है, ठीक है। एंड देन एनी अदर इंफॉर्मेशन विच में सीक अटेंशन ऑफ ATC। एनी अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, जस्ट हैव अ लुक। क्या होता है, सपोज आपके एयरक्राफ्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्लाई करने वाले हैं और आपके एयरपोर्ट पे, आपके एयरक्राफ्ट के अंदर कोई दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। आपने परमिशन मांगा टैक्सी का, एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी है या जो भी ATC है वो बोलेगा ठीक है आओ नंबर में लग जाओ, ऑलरेडी हमारे 5-6 एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स रनवे, आप भी अपना नंबर इसके पीछे लगा लो, ठीक है। सो सपोज ऑलरेडी 4 एयरक्राफ्ट आर ऑलरेडी ऑन द वे, यू आर द 5th वन हु आस्क्ड फॉर द टैक्सी परमिशन। तो जो नॉर्मल कैटेगराइजेशन है वो आपको सीक्वेंस में लगा देगा क्यू में कि ठीक है जाओ, 4 ऑलरेडी क्यू में है, आप भी पीछे से लग जाओ। हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज हैविंग लेस टाइम, एक तो उनके पास टाइम कम होता है, ठीक है, जितने भी लोग बड़े होते हैं ना पोस्ट वाइज, टाइम उनके पास कम होता जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बड़े लोग काम वाम कुछ करते नहीं है, बिजी बहुत रहते हैं। उनका काम नहीं करना इटसेल्फ इज ए काम। अगर काम वही करने लग जाएंगे तो हम लोग जो भी एग्जीक्यूटिव रैंक के ऑफिसर्स हैं, हम लोग काम करना बंद कर देंगे। तो वो लोग काम नहीं करते हैं लेकिन वो लोग डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं। आप भी कई बार जब मेंटेनेंस करते हो तो कुछ कुछ ऐसा मोमेंट आता है कि आप फंस जाते हो, आप वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हो। एज ए टेक्नीशियन, एज ए टेक्नीशियन आप कई बार इतना काम करते हो कि पसीने से पूरा नहा के निकलते हो, लेकिन क्या इंजीनियर्स का वैल्यू आपके सामने डाउन होता है? नो। इंजीनियर काम करे नहीं करे, फोन पे लगा रहे, दूर बैठा रहे, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी AME उठाता है। किसी क्रिटिकल मोमेंट पे जब आप अटकते हो तो वहां पे जैसे ही डिसीजन लेने की गुंजाइश होती है, AME बताता है कि ये करना है, ठीक है। सो सच इंपॉर्टेंट पर्संस इज हैविंग लेस टाइम, तो आप उसको लाइन में नहीं लगा सकते, उसको बाईपास करवाना पड़ेगा। नहीं तो आप उसको लाइन में लगाओ, बोलेगा वेरी गुड बेटा, अच्छा। नेक्स्ट टाइम कभी तुम्हारे PM जब US आएंगे ना, तो तुम्हारे PM को एयरपोर्ट पे मैं 2 घंटा घुमाऊंगा। तुम्हारा एयरपोर्ट तो छोटा है, 10 मिनट में निकल जाऊंगा, हमारा एयरपोर्ट तो और ज्यादा बड़ा है, तो मैं तुम्हारे PM को 1 घंटा चक्कर लगवाऊंगा एयरपोर्ट का। तो कई बार उनके यू कैन से इगोइस्टिक बिहेवियर को भी ये चीजें हिट कर जाती है कि अगर मैं आपके यहाँ गेस्ट हूं तो हमको प्रायोरिटी दी जाए। फर्स्ट थिंग, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉरेन डेलीगेट्स ऑन बोर्ड, तो उनको इंतजार नहीं करवाना है। सेकेंडरी, आप एक मेडिकल फ्लाइट ऑपरेट करना चाह रहे हो, पैसेंजर्स की जान पे बनाई है, तो आपको बाईपास करवाना पड़ेगा। नॉर्मल रोड में भी एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दिया जाता है, राइट। सो मेडिकल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी डिपार्चर।
लाइव ऑर्गन कैरी कर रहे हो, किसी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, लाइव ऑर्गन कैरी कर रहे हो, प्रायोरिटी डिपार्चर चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे हैं सिचुएशंस जो कि आपको हर चीज प्रायोरिटी पे चाहिए, या फिर आपके फ्लाइट का नेचर ऐसा है कि आप चाहते हो कि अगर मैं ये अपना जो प्रॉब्लम है अगर ये मेंशन करूंगा तो एटीसी हमको पहले डिपार्चर देगा। लाइक आपका फ्लाइट 1 घंटा डिले हो रहा है, कोई दूसरा फ्लाइट 2 मिनट डिले कर रहा है, तो कभी कभी एयरलाइन बताती है कि अगर हमारा फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा डिले हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू मिस सम ऑफ द सेक्टर। तो एटीसी बोलता है अच्छा ठीक है, बाकी सबको 1-1 मिनट और डिले करा देगा लेकिन आपको प्रायोरिटी डिपार्चर देगा। ऐसा नहीं करना है कि आपका एयरक्राफ्ट डिले पे डिले होता चला जाए। तो कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट है जो कि एटीसी का अटेंशन आपके तरफ खींच सके तो उसको मेंशन करिए। कहां पे? अदर इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में। बाद में ऐसा पछताना नहीं पड़े कि यार काश बता दिया होता या काश पूछ लिया होता, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट एग्जांपल टू कंडक्ट हियर, बट ऐसा होता है कई बार। लाइक मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि सपोज दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली समवेयर एंड दे आर नॉट हैप्पीली एबल टू टॉक टू मी। वो अभी मुझे बता भी नहीं पाते हैं सही से कि सर आई एम नॉट फाइनेंशियली गुड सो आई कैंट पे योर फीस कंप्लीटली। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो धीरे धीरे डेमो करेंगे और धीरे धीरे क्लासेस छोड़ के चल देंगे, ठीक है। दे आर स्ट्रगलिंग, आई नो कि द सिचुएशन दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम, बट उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि कैसे पूछूं, कैसे मांगू, लाइक दैट। तो वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इवन अभी तो 2-3 ही आए हैं, अभी आएंगे पुराने बैच वाले जो कुछ, अगर किन्हीं का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो वापस बिल्कुल ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द 15 सितंबर। उसमें से 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बोल्डली बोला कि नहीं सर, आई एम जूनियर टेक्नीशियन इन इंडिगो, 8-10 हजार सैलरी मिलती है, आई कैन नॉट पे यू डायरेक्टली। ओके, इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी आई कैन गो अहेड। मुझे भी एटलीस्ट समझ में आता है कि हाउ ट्रेनिंग टेक्नीशियन लाइफ इज, आई कैन ऑल्सो फील द सेम। तो कोई भी चांस ऐसा मिस नहीं करना है कि काश बोल दिया होता। आपको कुछ भी आपके फ्लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, डेफिनेटली एटीसी को बताओ। डिसीजन लेना एटीसी का काम है, लेकिन आप अपने पॉइंट्स को रखो तो सही। तो इफ एनीथिंग इज देयर, मेंशन इट वेयर, अदर इंफॉर्मेशन में, so that ATC can take decision upon reviewing your profile। अगर उसको लग रहा होगा कि नो, ऑलरेडी जो हमारे सीक्वेंस में एयरक्राफ्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको बोलेगा कोई बात नहीं, लाइन में ही लगे रहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसको लगेगा कि आपका केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपको प्रायोरिटी डिपार्चर देगा, पीछे से आगे निकाल देगा कि एक काम करो, दूसरा टैक्सी वे पकड़ो, चार्ली 1 डायरेक्ट रनवे पे मिलो। So such things are also happen on the field. Am I clear about these 13 parameters? इस 13 parameters में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, they can ask me here. Is there anything out of these 13 जिसको डिस्कस करने की जरूरत है? एक बार नजर मारो सॉफ्ट आई से, कोई एक ऐसा टर्म shall I need to redefine? Anyone, anything? नो सर ऑल गुड। वो यंकी जुल आप ठीक है। बाद में बताओ ना। हाँ, अभी अभी बताता हूँ, पहले उसी को बता लेते, ठीक है। Now, if someone will ask you about flight rules, कितने flight rule होते हैं? Amol, how many flight rules are there? Victor, sorry, I'll not 4. say name from now onwards. I'll say call sign. Victor Tango Lima Kilo Kilo. How many flight rules are there? There are 4, sir. इसका एक स्मार्ट आंसर मैंने बताया था. Are you recalling it now? Instrument flight rule, visual flight rule,
and Yankee and Zulu. ठीक है, okay. The basic flight rules we have studied till now, that is IFR and VFR. वही होता है generally, ठीक है? There are two flight rule only, IFR and VFR. IFR क्या होता है? Instrument flight rule enables your aircraft to operate, ठीक है? To operate completely relied on the instrument readings or instrument data and indications given by the instruments. आपके एयरक्राफ्ट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स फिट हैं, वहां से जो रीडिंग आई उसी को मान लेना है, ठीक है? डेफिनेशन वाइज आई थिंक यू माइट बी गुड, तो आप अपने डेफिनेशंस का यूज करना, बट उसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि आपके एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन अगर कंप्लीटली रिलाई है ऑन द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, instrument data and indications given by the instruments, then such flight operations considered under the instrument flight rule. In this case, no visibility outside of the aircraft required. आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है. पायलट अपना डिसीजन ले सकता है कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स, इंस्ट्रक्शंस केम फ्रॉम एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स. एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट ने जो कह दिया हम उसको मान लेंगे. Such aircraft is having a huge set of sensors. ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि IFR अप्रूव्ड होते हैं, इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, which make the aircraft fly safely, distinguishing and ensuring all situations are normal. ऐसे सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स का काम ये है कि वो हमेशा ये पता करते रहेंगे कि सारा सिचुएशंस नॉर्मल है कि नहीं. अगर कभी कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन उनको इंडिकेट होता है, दैट टाइम दे विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मींस आइदर अलर्ट, आइदर इनपुट, आइदर सजेशन. ठीक है? कई बार अगर सपोज आपके मोबाइल का बैटरी लो हो जाता है तो उस टाइम बोलता है बैटरी लो, लाइक दैट मींस उसने अलर्ट दिया. एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टीकैस का जो अलर्ट आता है, पुल अप, टेरेन, ठीक है? या फिर जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो जो ऑरल वार्निंग आती है 500 फीट, 200 फीट, 100, 50, 40, 30, 20 ऐसा करके जो बोलता है ना, these readings comes under the intelligence. ये सब आपको बताते रहता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है ऑल ओके, कुछ भी अब नॉर्मल हुआ आपको अलर्ट देगा, इंटेलिजेंस देगा. पुल अप, ऊपर उठाओ, दैट इज इंटेलिजेंस. आप काफी हार्ड डिसेंड कर रहे हो, योर डिसेंड इज टू स्टीप, ठीक है? तो एलिवेटर को खींचो अपने साइड, योर एयरक्राफ्ट शैल टेक अप. So such indications, such alerts, such parameters comes under intelligence, and that is being given by IFR approved aircrafts. Visual flight rule, very simple. When aircraft is being operated by viewing outside of the cockpit, pilot बाहर देख के फ्लाई करता है कि क्या सिचुएशन है, वेदर नॉर्मल, रनवे सामने है, लैंड कर सकते हैं, रनवे क्लियर है, टेक ऑफ कर सकते हैं. ठीक है? So if operation is being made visually by the pilot, ठीक है? अब जो IFR होता था वहां पे सेफ फ्लाइट कौन डिस्टिंग्विश और इंश्योर करता था? इंस्ट्रूमेंट्स. बट VFR के केस में पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि बाहर सब कुछ सेफ है और हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं. अगर आपका एयरक्राफ्ट IFR अप्रूव्ड है तो भले आप VFR में फ्लाई कर रहे होते हो, उस टाइम पे भी इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग बंद नहीं होती है. इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग ऑलवेज विल बी अवेलेबल. बट आपकी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक आप खुद से बाहर नहीं देख लोगे या जब तक आप खुद से इंश्योर नहीं करोगे कि यस माय इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग एंड माय ओन इंटरप्रिटेशन इज मैचिंग विद ईच अदर, तब तक आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो. दैट्स ऑल. तो VFR में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट लेगा,
विजुअली फ्लाइट करेगा। इंस्ट्रूमेंट में डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ने बोल दिया 10 फीट मतलब 10 फीट, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज IFR। नाउ if you are operating your aircraft above 15,000 feet, then your aircraft shall have mandatorily IFR approved. आप VFR में फ्लाई नहीं कर सकते above 15,000 feet. Apart from that, देखो टॉपिक रिवाइज करने से कुछ ना कुछ ऐड होता हुए जाता है। That day I forgot to mention कि if you are operating VFR, then you should operate your aircraft half an hour after sunrise and half an hour before sunset. VFR फ्लाई इसी बीच में होगा। सनराइज के आधे घंटे बाद, सनसेट से आधे घंटे पहले आपको अपना ऑपरेशन खत्म कर लेना है। अगर आपका एयरक्राफ्ट VFR है तो मॉर्निंग, अगर सपोज सनराइज का टाइम 6 o'clock आया तो 6:30 से पहले आपको डिपार्चर का परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एयरक्राफ्ट VFR है तो इवनिंग में सनसेट से 30 मिनट पहले, -30 मिनट ऑफ सनसेट, आपको एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आप ऑपरेट नहीं कर सकते। सो VFR फ्लाइंग विल बी कैरीड इन दिस टाइम फ्रेम ओनली and below 15,000 feet. Am I clear so far? Now, Yes. there may be some of the airports. अच्छा, अब IFR में क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं। When you are going to fly under IFR, basically it tells you about ILS, ठीक है। कि आप ILS is one of the key point instrument landing system और ऑटोमेटिक अप्रोच सिस्टम्स। अभी तो इसके काफी सारे नाम बदल चुके हैं, कुछ दिन में ILS भी ओमिट हो जाएगा, फील्ड से पता भी नहीं चलेगा। ILS से भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी आने शुरू हो गए हैं। तो इट बेसिकली टेल्स इन ऑपरेशन में अबाउट ILS एंड विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी इसमें काउंट होता है अपना इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, कि आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, प्लस आपका एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से कैपेबल है। सो देयर में बी अ मोमेंट, सपोज आपको बेंगलोर से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना है एंड थिंक अबाउट वन हेलीकॉप्टर, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर जो कि बेंगलोर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा और जाक्कूर एरोड्रोम, दैट इज देयर इन येलाहंका साइड, जाक्कूर एरोड्रोम है, वहां पे एक सिंपल एयर स्ट्रिप है और छोटा सा फ्लाइंग क्लब ऑपरेट होता है। तो जाक्कूर एरोड्रोम पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, बट बेंगलोर एयरपोर्ट पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो कोई एक एयरक्राफ्ट जब बेंगलोर से टेक ऑफ करेगा, दे हैव हैविंग ऑप्शन कि जहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर जहां पे आपको लो विजिबिलिटी में टेक ऑफ करना है, तो आपका एयरक्राफ्ट सारे इक्विपमेंट से कैपेबल है, तो यू कैन टेक ऑफ अंडर IFR। तो IFR को फॉलो करते हुए आपने डिपार्चर ले लिया। लेकिन जब आई बारी लैंडिंग की, तो जो हमारा लैंडिंग एरोड्रोम है वहां पे ILS है ही नहीं, तो उस टाइम पे जो हमारा अप्रोच होगा दैट विल बी VFR, ठीक है। सो व्हेन वी इनिशियली operate our aircraft under IFR and later on if we have changed over to VFR, तो ऐसे फ्लाइट रूल को बोलते हैं फ्लाइट रूल यांकी। इनिशियली IFR, लेटर ऑन VFR। इसी का वाइस वर्सा, जाक्कूर से किसी को बेंगलोर आना है, बेंगलोर इंटरनेशनल, तो VFR में टेक ऑफ करेगा, फिर इसको पता चला अच्छा बेंगलोर एयरपोर्ट पे तो ILS अवेलेबल है, तो कम विजिबिलिटी में भी लैंड कर सकता है। तो दिस विल बी नोन एज फ्लाइट रूल जुलू, यानी इनिशियली आपने VFR से टेक ऑफ किया एंड जब लैंड कर रहे थे वहां पे IFR मेथोडोलॉजी का यूज किया, ठीक है। दैट इज नोन एज फ्लाइट रूल जुलू। अब इसमें एक डाउट बनता है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि कितने फ्लाइट रूल है, तो जब आप बोलोगे 2, बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, टोटल 4 हैं।
फिर आपसे किसी ने पूछा कितने फ्लाइट रूल है, आपने बोला 4, बोलेगा नो, ओनली 2। तो इसमें बचना है। कैसे बचना है? इफ someone will ask how many flight rules are there, in answer mention the both, क्योंकि हो सकता है आपसे फ्लाइट रूल के बारे में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 में पूछा जाए। पार्ट 1 में पूछने की गुंजाइश नहीं है। पार्ट 1 में आपको पता है तो आपको पता है। पार्ट 2 में पूछ सकता है कि कितने फ्लाइट रूल है, आप बोलोगे 2, बोलेगा नहीं, आप बोलोगे 4, बोलेगा नहीं। तो आपका, अगर आप आपके आंसर में कोई एक टर्म रखते हो तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डाउट आता है, बेनिफिट ऑफ डाउट आता है। तो आपके आंसर में आप दोनों मेंशन करो। इफ somebody will ask how many flight rules are there, you can say basically there are 2 flight rules only, IFR and VFR, but in operation point of view we are considering 4. Something is Yankee and Zulu. If we are operating our aircraft initially under IFR and then later on converted to VFR, that is Yankee. If we are operating our aircraft initially under VFR and later on converted to IFR, that is Zulu. Am I clear so far? Yes, sir. So that is known as flight rule. तो आपके फ्लाइट प्लान में यहाँ पे मेंशन रहेगा IVYZ, ठीक है, IFR या VFR या यंकी या जुलू, ठीक है। तो इन चारों में से आपको समझ जाना पड़ेगा। क्लियर? The next topic I have told कि I will tell you about call sign, कि call sign कैसे डिसाइड होता है, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे डिसाइड होता है। Now I told your aircraft call sign may be your aircraft registration number. Okay, India Zulu November. इतना ही मुझे याद है। Now, so sorry, India Juliet November. Now, if you think कि this is your aircraft registration number is going to be your call sign, well and good. आपके एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन होता है, उसी नाम से तो आपके एयरक्राफ्ट को अनाउंस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, शेड्यूल एयरलाइंस में कई बार क्या होता है, आपका सेम एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडिया जुलू नवंबर may have 3 to 4 sectors a day, ठीक है। तो किस किस सेक्टर में क्या क्या डिले हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या क्या अकरेंस हुआ, इसको मॉनिटर करना टफ पड़ जाता है। प्लस पायलट कंफ्यूज रहते हैं, उनको याद नहीं हो पाता एक बार में, हर बार वो पेज पलट के देखना पड़ेगा क्या है क्या है क्या है शेड्यूल एयरलाइन में, ठीक है। एक पायलट को कई सारे एयरक्राफ्ट पे बिठा दिया जाता है, तो उन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए जो आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन है, दैट इज नॉट ओनली योर रजिस्ट्रेशन मार्क्स, दैट कैन बी द आईटा कोड ऑफ योर एयरलाइनर और योर कंपनी एंड देन योर फ्लाइट नंबर। आईटा कोड क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोड। आप अपने एविएशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन आईटा में कर सकते हो, तो वो आपको एक कोड देगा, 2 लेटर कोड, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट सम पॉपुलर लेटर कोड ऑफ इंडियन एयरलाइंस, और उसको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। द वेरी पॉपुलर एंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया, दैट इज इंडिगो, उसका आईटा लेटर कोड है 6E, जिसको बोलते हैं आई फ्लाई, ठीक है। 6E हमेशा नहीं बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो यू कैन रीड एट 6E, बट आईटा कोड में इसका प्रोनाउंसिएशन है आई फ्लाई। देन AI, दैट इज फॉर एयर इंडिया। SG स्पाइस जेट। विस्तारा का है UK, ठीक है, लिखता है UK, बोलता है विस्तारा। गो फर्स्ट जो बंद हो गया अभी, आई थिंक विस्तारा भी मर्ज कर रहे हैं एयर इंडिया में, तो गो फर्स्ट G8 प्रोनाउंसिएशन था गो फर्स्ट। आकाशा एयर, दे आर राइटिंग QP क्यूबेक पापा, बट बोलते हैं आकाशा एयर। एयर एशिया इंडिया बंद हो गया, इसका लेटर कोड था I5, नहीं सॉरी बंद नहीं हुआ, मर्ज हुआ, I5, उसका प्रोनाउंसिएशन था रेड नाइट। IX एक्सप्रेस इंडिया,
ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गए सारे रीजनल्स। सो AIX अभी के टाइम पे, एयर इंडिया एक्सप्रेस, नाइनर आई अलायंस एयर, Sierra Niner, Fly Big, another domestic airline, नॉर्थ इंडिया आई गेस, मध्य प्रदेश के रीजन में ऑपरेट करते हैं, फ्लाई बिग, स्टार एयर, Sierra 5, प्रोनाउंसिएशन हाई स्टार। ठीक है, तो ये कुछ आइटा कोड्स हैं आपके कॉमन एंड पॉपुलर एयरलाइंस के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये बहुत इजी हो जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। नाउ हमने क्या कहा कि आपका कॉल साइन बनता है आइटा कोड प्लस फ्लाइट नंबर। सपोज आपका एयरक्राफ्ट मॉर्निंग 7 to 10, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेके 9 o'clock तक जो एयरक्राफ्ट बैंगलोर से मुंबई जाएगा, ठीक है, उसका फ्लाइट नंबर है 789er। ठीक है, फ्लाइट नंबर इज 789er। नाउ include 6E, ठीक है, so I fly 789er can also be your call sign, not only Victor Tango India Zulu November। इसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन I fly 789er भी हो सकता है। Am I clear on this point? Yes, sir. So pilot can say directly Bangalore Tower I fly 789er, वहां पे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, they will understand, अच्छा I fly इंडिगो का एयरक्राफ्ट 789er, फ्लाइट प्लान उनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, मैच करवा लेंगे, अच्छा 7 to 10 मुंबई वाला, ओके, वो समझ जाएंगे। ठीक है, कि दिस इज योर एयरक्राफ्ट एंड आई हैड ऑब्जर्व्ड यू। सो यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट योर एयरक्राफ्ट फ्लाइट कॉल साइन यूजिंग आइटा कोड प्लस फ्लाइट नंबर QP6908, आकाशा एयर 698। ठीक है, स्टार एयर का लेते हैं S5779er, हाई स्टार 779er। So while communicating, they can also say Bangalore Tower, High Star 779er, वो समझ जाएगा, अच्छा वो वाला एयरक्राफ्ट। ठीक है, so either you can use your aircraft registration number or the ITA code plus flight number as your call sign. So in examination, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन में लिखा रहेगा AI 789er, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो कॉल साइन ही नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर कॉल साइन, तो वहां पे VT रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा रहेगा, दैट विल बी आइटा कोड प्लस फ्लाइट नंबर, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर कॉल साइन। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझना। ठीक है, बाय द टाइम जब हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीजों को इतना ज्यादा बार हम लोग देख चुके होंगे कि कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इन सब चीजों में कोई कंफ्यूज होता भी नहीं है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है। तो कुछ कुछ जो पॉपुलर एयरलाइनर्स के आइटा कोड है ये आपको याद करने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं है, 8-10 है, एक बार नजर पड़ जाता है ना तो आपको याद हो जाता है, फिर आप भूलते नहीं हो इसको, डोंट वरी। क्लियर, क्लियर फॉर दिस? Yes, sir. So hope I am able to complete the topic flight plan and ITA codes. Done? Tomorrow we'll catch the topics later, but okay, I need to cover some of the topics for Jainab, but I'll suggest Jainab, please go through the lecture number 3rd and 4th that is available in the drive link. ठीक है, recorded session. कल दिन में अगर आपकी छुट्टी है, means if you are having day off, then please go through the video available as a lecture 3rd and lecture 4th. There you will understand the aeronautical phonetics, that is Alpha, Bravo, Charlie, Delta, and some of the reading techniques of time, numbers, altitude, and the aerodrome and its part. What is the different portions of airports,
उसका डेफिनेशन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सी वे क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, रैम्प क्या होता है, रनवे क्या होता है. These things I had explained everything on this video, so just go through the same once. अगर उसमें कोई query हो, you can directly ask me anytime through the WhatsApp group or in the class. अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, then we'll discuss in class and we'll catch you further. ठीक है? But these topics are very basic, so I'll suggest कि please go through the video once. आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा भारी नहीं है कुछ. Is that okay? हाँ जी सर. Okay, okay. So you need to see these two topics through video first, and हम लोग एक बार इस पे क्वेश्चनर कर लेंगे in the class, so that I can also have double check कि whether this thing is available to you or not. Okay, done. So this is 7th of September and we had completed lecture 4. Let it be here only, and tomorrow we will see some of the definition side only. ठीक है, अभी हम लोग कॉल प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे. कल हम लोग देखेंगे एरोनॉटिकल फ्रेजेज. ठीक है, किस फ्रेज का क्या मीनिंग है और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेज का यूज करके अपने आंसर टाइप को इंप्रूव करते हैं. ठीक है, आंसर टाइप को इंप्रूव करते हैं टू अवॉइड लेंथी सेंटेंसेस. ठीक है, और टू कंप्लीट आवर कॉल in stipulated time or in a short period of time, we are using phrase instead of lengthy communications. Now, who is going to tell me कि push to talk switch, जो PTT switch होता है पायलट का, उसको प्रेस करके रखने की या उसको एक्टिवेट रखने का क्या टाइम लिमिट है, कि कितने टाइम के अंदर अंदर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते. Who is going to tell me? Anyone? अगर आप अपने पुश टू टॉक बटन को ज्यादा देर तक प्रेस करके रखोगे, वो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा. ठीक है, कुछ है टाइम, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, कितने टाइम तक उसको प्रेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम प्रेस करके नहीं रख सकते हैं. एनीवन नोस? 60 सेकेंड, 1 मिनट. आप अपने एयरक्राफ्ट के पुश टू टॉक बटन को 1 मिनट से ज्यादा प्रेस करके नहीं रख सकते. ट्राई करना, ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा. ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लिमिटेशन ऑल्सो. व्हाई? अगर आप बेसिक थियरी ऑफ रेडियो पे जाओगे, इफ यू प्रेस द पुश टू टॉक बटन, वो हेवी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है, और एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है. ठीक है, VHF कम्युनिकेशन सिस्टम का पावर रेटिंग क्या होता है? 15 से 20 वॉट. ठीक है, 15 to 20 वॉट्स. तो ये 15 to 20 वॉट्स ऑफ पावर प्लस एट एम्परेज ऑफ आई गेस 6 एम्पियर से स्टार्ट होके 20 एम्पियर. ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फिगर, बट रफली इतने का आइडिया रखो. 6 एम्पियर टू 20 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ होता है. ठीक है, जैसे ही आप पुश टू टॉक को प्रेस करते हो, आपका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम का एंटीना, उसका वायर एक्टिवेट हो जाता है टू ड्रॉ वोल्टेज ऑफ 15 to 20 वॉट प्लस एम्पेरेज में 6 एम्पियर टू 20 एम्पियर. तो अगर इतना अमाउंट ऑफ करंट 1 मिनट से ज्यादा के टाइम तक ड्रॉ होगा, तो आपका हीट जनरेट होगा थ्रू द केबल्स. सो दैट इज गोइंग टू डैमेज योर कम्युनिकेशन सिस्टम. तो 1 मिनट से ज्यादा पुश टू टॉक बटन को प्रेस करने का रिकमेंडेशन नहीं है. जो भी है कंप्लीट कर लो विद इन अ मिनट. तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन, यू शुड मेक अ टारगेट कि 1 मिनट से ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. तो अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन रखोगे, तो या तो अपने कम्युनिकेशन को सेक्शन में डिवाइड करके कम्युनिकेट करोगे कि 1-1 मिनट पे 2 बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या फिर आपका टारगेट रहना चाहिए कि विद इन 1 मिनट आपका कॉल कंप्लीट हो जाए. ठीक है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू सी कि हाउ यूजिंग एरोनॉटिकल फ्रेजेस. ठीक है, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द कॉल टाइम. ठीक है, that will also improve our answer type
एंड दैट विल क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ बोले एटीसी समझ नहीं पाया, एटीसी ने कुछ बोला वो आप नहीं समझ पाए। तो उन सारे कंडीशंस में एक डिफरेंट फ्रेजियोलॉजी डेवलप की गई है कि इतने लेंथी सेंटेंस बोलने के बदले आप ये बोल दो। ठीक है, तो हम लोग कल उसको देखेंगे वन बाय वन। फॉर टुडे आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई एम कंप्लीटिंग दिस मीटिंग here only and we'll see you tomorrow 9 o'clock. Done? Okay, good night for today. Happy Ganesh Chaturthi to all. Enjoy करिए अगर आसपास मोहल्ले में मेला लगा है तो, and we'll see you tomorrow same time evening. ठीक है, good night. Okay, Good night good night. everyone.